make the program for the trial and error method for the design of helical spring. So let me go to the problem. Design of the helical spring by trial and error method. This is the objective of the experiment. And this is the problem specification. So in the morning class, we have done some step, and we have done one trial. One trial we have done. But in this program, we will do as many trials. It may be 20 trials, 30 trials, 15 trials, whatever trials required for the safe design that can be performed in the 2 days experiment. So as you know that the wire diameter, as the wire diameter increases, the SUT decreases. And this data can be found from the design data book. So there is some. This is the that I have taken from the design data book. So ultimate tensile strength for the grade 2, patented and cold drawn grade 2. So in our problem, the material involved is patented and the springs are made of patented and cold drawn grade 2. So I have taken the table for this material. I have taken the table from wire diameter d equal to 2.8 to wire diameter d equal to 6.0. So how many rows I have taken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Around 14 number of rows I have taken. I have taken 14 rows and 2.8 to 6 millimeter. तो इनके बीच में कहां पर सेफ डिजाइन होगी, that I am interested in finding out. So I will start my first trial from d equal to 2.8. For this d equal to 2.8, the SUT is 1600 for the grade 2. This is for grade 1 and this is for grade 2. So I will start my trial from this to this. Then if the design is unsafe, then I will increase the diameter to 3. If it is again unsafe, then increase to 3.2 and so on. And whenever I will find the safe design, I will stop there. मान लीजिए 4.2 पर safe design मिल गया, then I will stop here. The program will stop here. And if it is not safe, then it will go to 4.5 and so on. Up to 6 millimeter it will go. Because my range is 2.8 to 6, it will check the induced stress and the permissible stress for this range only. I can increase the range, then it will check for the more range. So what I have done, I have typed these values in the Excel. So 1600, 1570, these are the wire diameter and SUT. So I am just stop sharing this, or I am not stop. Let's stop sharing, and I am now sharing a Excel file to you. So it is share. This is Excel file. Yes, Excel file is visible. Excel file is visible. Please बताइए आपको Excel file share. Yes sir, दिख रही है sir. Okay, so in one column, what I have done, in one column I have typed the diameter. Okay, so diameter D I have taken in A column and SUT I have taken in B column. Okay, and this is the transpose matrix, D equal to and SUT equal to. So ये values type करने के बाद मैंने इसको transpose कर दिया है. So wire diameter is changing from 2 up to 2.8 to 6 and SUT is changing from 1600 to 1320. So what I will take, I will make a variable in MATLAB. So I will just take these values from here. I will copy these values from here and I will use in MATLAB directly.
I can use these. I can make a matrix, or I can type in the MATLAB. If I am not want to type, then I can take from Excel also. So that I am sharing now. I am sharing you the MATLAB window. So now I am sharing you the MATLAB window. So MATLAB window, MATLAB. MATLAB window is shared. Yes, MATLAB window visible. है ना? तो I am working on a new file editor. So as usual I am writing. मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? I will write clear all, then CLC. ठीक है? Now I want to make a I want to call the data book values, है ना? So I am making a let variable is D, है ना? Or D from data book. So I can call it a DDB, है ना? Diameter D from data book, जो भी वहां पे लिस्टेड है, तो उन वैल्यूज को हम एक मैट्रिक्स के अंदर टाइप भी कर सकते हैं, और टाइप ना करना चाहें तो हम एक्सेल से इसको कॉल कर सकते हैं, है ना? तो मैं अपनी एक्सेल फाइल से इसको कॉपी कर लेता हूं, है ना? 2.8 से लेके जहां तक भी ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल C से, और मैं वापस आ गया मैटलैब विंडो में। So in MATLAB window, stop sharing is paused, resume share. Yes. हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? Am I connected to you? मैटलैब विंडो आपको शेयरेबल है, दिख रही है? जवाब दीजिए जरा। Yes sir. Yes sir. Yeah, so I am now taking the values from Excel, just copying them, and I am just pasting the values here. ठीक है, तो देखिए वायर डायमीटर 2.8, 3 मिलीमीटर, 3.2 मिलीमीटर, 3.4, ऑल द डायमीटर्स आर लिस्टेड in this matrix DDB, है ना? So DDB is a matrix in all the diameters are available. Now I am making another matrix for SUT. So SUT from data book, so I am giving the name SUTDB. ठीक है, SUT from data book. So again I am pasting these values from Excel. So I am going to Excel, highlighting the values, then copying the values, and again coming to MATLAB window and then pasting them. So now two matrices are there. One is DDB and one is SUTDB. Right now, I want to start my trials. So I am giving a remark starting the trials. है ना? और जो भी वेरिएबल मुझे इनिशियलाइज करने होंगे वो मैं इनिशियलाइज कर दूंगा यहाँ पर, है ना? आई एम अगेन गिविंग इनिशियलाइजिंग, ध्यान से देखिएगा प्रोग्राम, इनिशियलाइजिंग द वैल्यूज और वेरिएबल्स। तो जो जो वेरिएबल हमें नीड पड़ेगा वो हम इनिशियलाइज करते जाएंगे इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ट्रायल 1 से स्टार्ट करना है। तो पहला ट्रायल हमारा कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम 2.8 मिलीमीटर।
2.8 millimeter, है ना? So my wire diameter will be 2.8. So this 2.8 I can call DDB bracket 1, है ना? This is DDB bracket 2. This is DDB bracket 3, है ना? So I can call D equal to DDB bracket 1, है ना? If I call 1, then it is my first trial. So what I am doing, I am now making a loop over here. So for, I am using for loop. So for I equal to, है ना? I is a looping variable, है ना? ijk, you can take any value. I equal to looping variable. So my first trial starts from 1, ठीक है? Then it will be goes to 2, 3, 4 up to which value? It will go up to 1. How many values are in this matrix? So I have counted these are 14 values. So my loop will go for the 14 trials, है ना? It will go for the 14 trials. If safe design not found, then it will go for the 14 trials. And if at the 7th trial the design is safe, then it will stop. So what I am doing, I am writing for I equal to 1 to length of DDB. So length of DDB is 14, है ना? So 1 to 14. यदि आपकी कुछ वैल्यूज आप ज्यादा रेंज लेते हैं, then this code will work for that. It will calculate the length of values. How many values are there in that matrix? So I equal to 1 to length DDB. Diameter D is DDB I. है ना? I is a looping variable. So initial value of I is 1. So DDB1. DDB1 is 2.8. Correct? Now SUT equal to SUT DB I. It is SUT DB1. So now D equal to 2.8 and SUT equal to 1600. I have taken values from this table. Now what I have to do, I have to calculate the permissible stress. Okay, so permissible stress is tau P equal to, it is 0.3 into SUT. So I am writing 0.3 into SUT. So this is the permissible value. So SUT I have already available. SUT DB1, that is 1600. So tau P is not a problem. Again I can use semicolon over here. मैं semicolon लगा सकता हूँ यहाँ पर, अभी नहीं लगा रहा, बाद में लगा दूंगा. So tau P is available. Now tau induced stress, है ना? Tau I. So tau I can be found. What is the formula? Wall factor is required, K multiplied by 8 into PC. So into P into C divided by, in bracket, pi d square. So it is pi into d power 2. So this is my induced stress. Now in this induced stress, K is the Wall factor. So I have to calculate the Wall factor first. So in the initializing section, I can put the formula for K equal to 4 times C, 4 times capital C minus 1, put this value in bracket, 4C minus 1, then divided by 4C minus 4, so 4 into C minus 4, plus 0.615 divided by C. So this is the Wall factor. Clear? Now in this Wall factor, C is the spring index. So I have to define C index first. So capital C is given, how much it is given in our question? है ना? तो ये हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कैपिटल C? कैपिटल C is given 5. 5 it is given 5. आप क्वेश्चन को पढ़ के देख सकते हैं, प्रॉब्लम हमने सुबह क्वेश्चन किया भी है. So capital C is 5. Right? So now come to again this line. Tau induced. Tau induced is K is now available. 8P, and now P is not available. So first calculate P. So how we will calculate the P? P is given by
P is given by mt. Mt means it is the torque multiplied by 4, है ना, mt equal to mu p by 4, है ना. So mt into 4 divided by, in bracket, mu means coefficient of friction, into do plus di. Do is the outer diameter and di is the inner diameter. Correct? Now I am putting semicolon over here. So in the definition of P, mt is required. So torque is given in question. It is 300 Newton meter. So I am converting this into Newton millimeter. So it is 300 E3. E3 means 10 to the power 3. In MATLAB, E for 10 की power. So 300 into 10 to the power 3. And there are two friction linings are involved. So I am dividing the torque by 2. So this is the torque. So now torque is available. Now the coefficient of friction, mu equal to, it is given in question, 0.35. So mu is not a problem. Now diameter do. So outer diameter is given 270 in question. Inner diameter is given how much? कितना दिया हुआ inner diameter? जरा पीपीटी देखिए. पीपीटी में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में मैं आपको बताऊं, 170 और 270 ये दिए हुए डायमीटर. ठीक है, तो di is given 170. So now P is not a problem. P का फॉर्मूला आपके पास है. mt के फॉर्मूले से ही P का फॉर्मूला बन गया है. ठीक है, अब वापस आइए इंड्यूस्ड स्ट्रेस पे. तो I is K into 8pc divided by pi to 3.14, मतलब अपने आप ले लेगा. d स्क्वायर, है ना. d की वैल्यू कितनी है? 2.8. ddb1 means 2.8 initial value. So now tau P is available, tau I is available. दोनों स्ट्रेस आपके पास है. अब आपको क्या करना है? इन दोनों स्ट्रेस को कंपेयर करना है. ठीक है, so I am now using a if command. If tau P is greater than tau I, ठीक है, यदि परमिसिबल वैल्यू इंड्यूस्ड वैल्यू से अधिक है, इसका मतलब डिजाइन सेफ है. तो क्या लिखेंगे? f print f in bracket I will write design is safe. डिजाइन इज सेफ. और कौन से डायमीटर के लिए सेफ है? जो भी करंट वैल्यू है उसकी, जो भी उसकी करंट वैल्यू. सो डिजाइन इज सेफ फॉर डायमीटर. डिजाइन इज सेफ फॉर डायमीटर percentage d and the variable name is d bracket close. So design is safe. है? और यदि ऐसा नहीं हुआ, then else I will use else design is unsafe. तो मैं इसी कमांड को कॉपी कर लेता हूं. कंट्रोल C, कंट्रोल V. डिजाइन इज अनसेफ. ठीक है, अनसेफ होने के बाद में गो टू द नेक्स्ट ट्रायल. तो यहाँ पे एक चीज और बढ़ा देते हैं. डिजाइन इज अनसेफ, गो टू नेक्स्ट ट्रायल, go to next trial and close it. So this is else command. Now use the keyword and for ending the if, then use the keyword and again to end the for loop. ठीक है, इस एंड से if एंड हो गया और इस for का एंड लास्ट में आ गया. ठीक है, और यदि डिजाइन सेफ है तो फिर हमको ट्रायल नहीं करने हैं, हमारा स्टॉप हो जाएगा. तो स्टॉप करने के लिए आई एम यूजिंग ब्रेक, है ना. देयर इज ए ब्रेक कमांड, BREAK, ब्रेक. ब्रेक मींस द लूप विल एंड, है ना. द प्रोग्राम विल स्टॉप, द लूप विल एंड. तो देखिए बस बन गया हमारा ट्रायल एंड एरर. और क्या करना है? सेफ आ जाएगा डिजाइन जो भी होगा, है ना. तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम बना, एक इफ एल्स यूज किया है, एक फॉर लूप यूज किया है, सिंपल. तो अब इसको जरा रन करते हैं. कोई एरर आएंगी तो फिर उनको रेक्टिफाई करेंगे. तो पहले रन करते हैं, है ना. रन करने पे अपने आप पता चलता जाएगा कि कौन कौन कहीं कहां पर क्या एरर है. तो लेट आई रन इट.
है ना। तो रन करने के लिए F5 करते ही ये हमसे क्या कह रहा है, प्रोग्राम को सेव करिए। सो आई एम गिविंग द नेम हेलिकल स्प्रिंग, सो आई एम गिविंग द नेम HS, इट इज द डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, so name of the program is HS, I am saving it। तो देखिए HS रन होते ही लाइन नंबर 5 कॉलम नंबर 6 क्या दिखाई दे रहा है, अनबैलेंस्ड और अनएक्सपेक्टेड पैरेंथेसिस। ठीक है, लाइन नंबर 5 कॉलम नंबर 6। तो चलिए इसको देख लेते हैं, है ना। इस वाले ब्रैकेट को तो मैं ऊपर ही ले लेता हूं, ये मैट्रिक्स यहाँ बंद हो गया। इस वाली वैल्यू को भी मैं ऊपर ले लेता हूँ, वो मैट्रिक्स वहां बंद हो गया। ठीक है, नाउ C इक्वल टू 5 दोबारा से एक बार रन कर लेते हैं। तो इसमें चेक करिए, यहाँ पे इक्वल टू छूट गया है ना, SUTDB इक्वल टू, इसलिए वो अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस बोल रहा है। तो ये एरर दूर होने के बाद इसको फिर से रन करते हैं। ब्रैकेट भी नहीं बंद है। हाँ नहीं, ब्रैकेट तो बंद कर दिया। देखिए अभी दिखाते हैं आपको, ब्रैकेट इज क्लोज्ड 7th में से। हाँ अभी आ रहे हैं, 1 by 1 आ रहे हैं। तो अभी लाइन नंबर 7 कॉलम नंबर 6, तो लाइन नंबर 7 कॉलम नंबर 6 में 4C - 1 डिवाइडेड बाई 4C - 4, तो एक ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 4C - 1 डिवाइडेड बाई 4C - 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाई C। नाउ अगेन रन इट। सो नाउ द प्रॉब्लम इज एट कॉलम नंबर, line number 8 column number 19। so in line number 8 P equal to empty into 4 divided by, है ना, यहाँ पे एक ब्रैकेट ये म्यू का शुरू हुआ है ना, तो एक ब्रैकेट हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। now again run it। so the, एक सेकेंड, just saving this program, वो तो सेव है ही है। तो अब देखिए क्या एरर आ रही है, लाइन नंबर 7 K इक्वल टू समथिंग में कोई एरर है ना। तो लाइन नंबर 7 पे चलते हैं, C इक्वल टू 5 और K इक्वल टू 4C - 1 डिवाइड बाई 4C - 4 0.615 डिवाइड बाई C। ठीक है, तो इसमें तो कोई एरर फिलहाल नहीं दिख रही है ना। MT 300 E3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, MT में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। U इक्वल टू 0.35, DO इक्वल टू 270, DI इक्वल टू 170। तो जरा सा इसको हम अभी एक बार स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करते हैं मैटलैब को। तो इट इज शेयर स्क्रीन, नाउ द मैटलैब विंडो, यस। so now I am running it, F5। so the problem is at 4C, so this small c and this capital C, है ना, it is a problem। so we have made the variable as capital C, so I will use capital C over here, है ना, this is already capital। now run it। so after running, what is the output, let's analyze the output first। so and I will open initially from here DDB, these are the 14 values from the data book starting from 2.8 millimeter to 6 millimeter। then these are the SUT values starting from 1600 to 1320, 14 values। ठीक है, now this is the spring index 5 that we have defined, है ना। if we don't want to show it on the screen, then I can put a semicolon over here, C equal to 5, तो next time से ये स्क्रीन पे नहीं आएगा। now P equal to 389 into 3896, है ना, 3896 हो गया, ये पावर 10 पावर 3 है। तो 3896 हमारा फोर्स आ गया। फोर्स हमारा इतना ही आया था मॉर्निंग क्लास में, है ना। फिर इस फोर्स को हमने 9 से डिवाइड किया था, क्योंकि वहां पे 9 हेलिकल स्प्रिंग थी, है ना, 9 हेलिकल स्प्रिंग थी। तो मैं यहाँ पर अब इसको 9 से डिवाइड करूंगा, जो मैंने P निकाला है। तो आई विल राइट P इक्वल टू P/9, P इक्वल टू P/9।
बिकॉज देयर आर 9 हेलिकल स्प्रिंग्स। ठीक है, तो पहले फोर्स निकला, फिर उसको 9 से डिवाइड किया। ठीक है, तो अगली वाली रन में वो ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद टॉप पी यानी परमिसिबल जो वैल्यू है, ठीक है, अब देखो अभी हम यहाँ पे थे ना, शुरू से देखेंगे प्रोग्राम को। हम यहाँ थे, हमने ये चेक कर लिया, सी कर लिया। ठीक है, अब हमारा सी होने के बाद में फोर्स आ गया, फोर्स को हमने 9 से डिवाइड कर दिया, डी हमारा 2.8 हो गया, है ना, एस यू टी 1600 हो गया, 2.816। अब ये परमिसिबल वैल्यू 480 आई, और इंड्यूस्ड वैल्यू कितनी आई है, हाउ मच द इंड्यूस्ड वैल्यू, 8290, 292। तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ना, हमारे फॉर्मूले में कोई लॉजिकल एरर है, क्योंकि 8000 समथिंग तो मेगा पास्कल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो टॉ आई के फॉर्मूले को वेरीफाई करिए। तो देखते हैं टॉ आई का फॉर्मूला क्या है। टॉ आई इज गिवन बाय 8pc डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने ये p इक्वल टू p/9 कर दिया है, तो वो ये स्ट्रेस टेस्ट ठीक हो जाएगा, है ना। तो अभी हमारा टॉ परमिसिबल 480 है और ये 8000 समथिंग है, तो इसका मतलब डिजाइन अनसेफ है। तो देखिए लिखा हुआ आ गया, डिजाइन इज अनसेफ, गो टू नेक्स्ट ट्रायल। ठीक है, यानी कि वो इफ के एल्स वाले पार्ट में चला गया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो इफ के कौन से वाले पार्ट में चला गया, एल्स वाले पार्ट में चला गया। अब जैसे ही एल्स वाले पार्ट में गया तो d इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, i की वैल्यू 1 बढ़ गई, तो ddb2, है ना, वो दोबारा से जब प्रोग्राम रन हुआ तो दोबारा से क्या हुआ, d इक्वल टू ddbi, i की वैल्यू पहले 1 थी, अब नेक्स्ट लूप में, नेक्स्ट ट्रायल में i की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो ddb2, और ddb2 में क्या वैल्यू लिखी हुई है, 3 मिलीमीटर, है ना, 2.8 के बाद 3, तो ये 1 बाई 1 ऐसे लेता चला जाएगा। सिमिलरली SUT 1600 के बाद कितना ले लेगा, 1570 ले लेगा। तो वापस प्रोग्राम पे आते हैं, आउटपुट में, तो d इक्वल टू 3 हो गया, SUT 1570 हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है। परमिसिबल वैल्यू 471 आ गई, इंड्यूस्ड वैल्यू 7000 समथिंग आ गई, डिजाइन दोबारा से अनसेफ है, गो टू नेक्स्ट ट्रायल, बिल्कुल सही चल रहा है। फिर 3.2 वैल्यू हो गई, 1500 हो गई, 400, है ना, बिल्कुल सही चल रहा है प्रोग्राम। तो बस डिवाइड बाई 9 की वजह से ये पूरा चला गया। तो चलिए अब इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, अगेन रन। तो डिजाइन इज सेफ फॉर द डायमीटर 4.25 मिलीमीटर। ठीक है, तो 4.25 पे आपकी डिजाइन क्या आ गई, सेफ आ गई। तो 4.25 आपका कहां पर है, दिस वन, 4.25। ठीक है, तो कौन सा ट्रायल हुआ ये, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, ट्रायल 4, ट्रायल 5, ट्रायल 6, ट्रायल 7, ट्रायल 8। तो ट्रायल 8 पे जाके ये सेफ हो गया है। तो हम ट्रायल के नंबर भी डाल सकते हैं प्रोग्राम में। तो चलिए मैं ट्रायल का नंबर डाल देता हूं, जहां से मैंने लूप शुरू किया है यहीं पर मैं लिख देता हूं, f print f in bracket I am using comma trial number और उसके बाद स्लैश n क्लोज कॉमा, और वेरिएबल जो लूप वेरिएबल है उसी को ले ले, i की वैल्यू 1 है तो पहला ट्रायल आ जाएगा, फिर दूसरा ट्रायल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं %d, तो d की जगह पे i की वैल्यू आ जाएगी, i की वैल्यू पहले 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जितने भी ट्रायल होंगे उस हिसाब से वो आता चला जाएगा। तो लेट्स रन इट अगेन। तो नाउ सी द आउटपुट फ्रॉम स्टार्टिंग। ये देखिए, ddb 14 वैल्यूज, SUTDB अगेन 14 वैल्यूज, d इक्वल टू 2.8 फर्स्ट ट्रायल, देखो लिखा हुआ आ रहा है ट्रायल नंबर 1, है ना, ट्रायल नंबर 1, d इक्वल टू 2.8, SUT 16, टॉप परमिसिबल 480। अब देखो सही हो गया, 921 हो गया ये। तो परमिसिबल 480 है, इंड्यूस्ड 921 है, इसलिए डिजाइन अनसेफ है, गो टू नेक्स्ट ट्रायल। ठीक है, फिर ट्रायल नंबर 2 शुरू हो गया। ठीक है, ट्रायल नंबर, यहाँ पे भी स्लैश n लगाना पड़ेगा, जिससे ये ट्रायल नंबर 2 नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रायल नंबर 2 के बाद दिखाते हैं ना। तो ये हम थे ट्रायल नंबर 1, ट्रायल नंबर 2, और ट्रायल नंबर 2 के बाद में हम चले, अब d की वैल्यू 3 हो गई, SUT चेंज हो गया, परमिसिबल 471, 802 अभी भी अनसेफ है। ट्रायल नंबर 3 पे चले गए, 3.2, 1550, परमिसिबल 465, इंड्यूस 705 अभी भी अनसेफ है।
3.4 हो गया, एसयूटी इतना हो गया, एसयूटीपी 459, 624 अभी भी अनसेफ है। ठीक है, तो देखिए ये ट्रायल नंबर 5 हो गया, इसी तरह से ट्रायल नंबर 6 और ट्रायल नंबर 7। ठीक है, ट्रायल नंबर 7 और ट्रायल नंबर 8, ट्रायल नंबर 7 तक अभी अनसेफ है, और ट्रायल नंबर 7 के बाद डिजाइन इज अनसेफ है ना, अभी भी अनसेफ है। देखो 444, 451, अब बहुत थोड़ा ही फर्क रह गया है। नाउ एट द 8th ट्रायल द वैल्यू इज 438 परमिसिबल है, इंड्यूस 399। देखिए यहाँ पर अब परमिसिबल ज्यादा है, इंड्यूस्ड कम है, तो इसका मतलब डिजाइन सेफ है फॉर दिस डायमीटर। तो अब वो कंडीशन ट्रू हो गई है, तो वो अंदर चला गया ट्रू वाली कंडीशन में। सो डिजाइन इज सेफ फॉर द डायमीटर 4.25 मिलीमीटर। ठीक है, अब आपका डायमीटर निकलेगा, बाकी चीजें तो फिर आप कर ही लेंगे, एक्टिव कॉइल्स वगैरह। मेन चीज आप डायमीटर निकालना ही मेन है। तो इसमें हमने क्या किया है, जस्ट वी हैव यूज्ड द फॉर लूप एंड द इफ कंडीशन। ठीक है, फॉर लूप एंड द इफ कंडीशन जस्ट वी हैव यूज्ड। ठीक है, अब मान लो हम इन सारी वैल्यूज को एक जगह दिखाना चाहते हैं कि कौन से पहले वाले ट्रायल में डायमीटर कितना था, एसयूटी कितना था, एक टेबल बन जाए। क्या बन जाए, पूरे की एक टेबल बन जाए। ठीक है, कि पहले ट्रायल पे क्या था, दूसरे पे क्या था, तीसरे पे क्या था, चौथे पे क्या था, लाइक दैट। तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको जरा उसे शेयर करता हूँ। उस प्रोग्राम का नाम है हेली स्प्रिंग, है ना, ये है, ये मैंने बनाया था पहले। तो मैं इसको जरा शेयर करता हूँ, इसमें मैंने थोड़ी सी कोडिंग और बढ़ा दी है ना। तो वो आप जरा सा देखिएगा उसका। इसमें मैंने क्या किया है, एक तो मैंने फॉर्मेट सॉर्ट जी कर दिया है। सॉर्ट जी का मतलब है कि जो वैल्यूज 10 की पावर में आ रही हैं वो सिंपल वे में आने लगेंगे। तो बाकी सब चीजें वही हैं, है ना, ज्यादातर प्रोग्राम सिमिलर है। अब यहाँ पे मैंने जो डी लिखा था उसको मैंने डी ब्रैकेट आई कर दिया है। इसका मतलब डी एक मैट्रिक्स बनता जा रहा है, D1, D2, D3, D4। सिमिलरली जो टॉप परमिसिबल है उसको भी ब्रैकेट आई किया हुआ है, इट मींस टॉप भी एक मैट्रिक्स बनता जा रहा है, 1 2 3 4। एंड सिमिलरली टॉ इंड्यूस्ड भी मैट्रिक्स बनता जा रहा है। ठीक है, फिर मैंने इफ कंडीशन में ट्राई वही चेक कराया है, चेक कराने के बाद में वही सारी कोडिंग है। फिर लास्ट में मैंने ये किया है कि डी मैट्रिक्स, एसयूटी मैट्रिक्स, परमिसिबल स्ट्रेस, इंड्यूस्ड स्ट्रेस, इन चारों को मैंने एक टेबल के फॉर्म में प्रिंट कराया है। तो देखिए इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, ये मैंने रन किया। तो रन करने के बाद में ये लास्ट में एक टेबल बन गई है। अब इस टेबल में देखो, जब वायर डायमीटर 2.8 है तो एसयूटी 1600 है, परमिसिबल 480 है, इंड्यूस्ड 921 है, तो ये अनसेफ है। उसके बाद सेकंड ट्रायल अनसेफ है, थर्ड ट्रायल अनसेफ, फोर्थ अनसेफ, फिफ्थ अनसेफ, सिक्स, सेवंथ अनसेफ, और एट्थ ट्रायल पे आप देखें कि 438 परमिसिबल है और 399 इंड्यूस्ड है। तो इस पॉइंट पे जाके हम क्या हो गए, सेफ हो गए एट्थ ट्रायल पे। तो बस वहीं पे हमारी वर्किंग रुक गई है। तो जितने भी ट्रायल परफॉर्म होंगे वो सब एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आप शो कर सकते हैं। हल्की सी कोडिंग चेंज की है, केवल जो लूप वेरिएबल है उसको हर स्ट्रेस के साथ में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, कोडिंग उतनी है, लाइंस ऑफ कोड उतनी है, केवल एक लाइन लास्ट में ये बढ़ी हुई है, डी मैट्रिक्स, एसयूटी, टॉ यूपी, टॉ एयूआई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी MATLAB प्रोग्राम फॉर दिस। इसमें आप डायमीटर, वायर डायमीटर ही निकाल देंगे तो इट इज सफिशिएंट फॉर द एक्सपेरिमेंट, है ना। बाकी चीजें आप ना भी करें तो सिर्फ वायर डायमीटर निकाल दीजिए, दैट इज फाइन। तो अभी कोई क्वेरी हो इसमें, प्रोग्राम की कोडिंग में कहीं कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज आस्क। हाँ जी, संदीप है क्या क्लास में? तुषार गुप्ता हैं? निमी महाराज सुन पा रहे हैं मुझे? एनीवन? यस सर। हाँ, क्लियर हो गया है प्रोग्राम कि फॉर लूप कैसे लगाते हैं, इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं, है ना, एरर को दूर करना है, एरर कैसे दूर करते हैं, तो इट विल हेल्प यू। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने थोड़ा लूपिंग और इफ कंडीशंस को भी स्टडी करना है। ठीक है, तो मैं इसे अब स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, मैटलैब का काम फिनिश होता है।
तो मैं वापस जरा पीपीटी पे आ जाता हूँ। तो लेट आई एम शेयरिंग द पीपीटी नाउ। ना टाइम भी हो गया है छोड़ने का, जस्ट देख लेते हैं कि पीपीटी में कुछ और तो नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग प्रॉब्लम आपके सामने है ही है। ठीक है, अब इसमें आंसर कितना है वायर डायमीटर का, देखो 4.5 दिया हुआ है यहाँ, तो हमारा 4.25 आया है। तो इसका मतलब मैनुअल में हमने क्या किया, 4 के बाद हम सीधे 4.5 पे चले गए थे, तो बीच की वैल्यू हम चेक ही नहीं कर पाए। ठीक है ना, लेकिन कोडिंग के माध्यम से हम ईच एंड एवरी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, है ना। 4.25 या बीच में मान लो 4.1 4.2 भी होता, वो भी टेबल में डाल देते हम, तो उसको भी चेक कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। मैनुअल में आप बहुत ज्यादा ट्रायल कर नहीं पाएंगे, तो आप वायर डायमीटर 4.5 का डिजाइन कर देंगे, बल्कि एक्चुअल में 4.25 ही सफिशिएंट था। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट बच जाएगी, है ना। 4.5 का डायमीटर आप यूज करेंगे, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और 4.25 का यूज करेंगे तो आपकी कॉस्ट बच जाएगी। तो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से आप कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं, है ना, ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। आप 4.01 4.02 ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैनुअली ट्राई करना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हमने लाइंस ऑफ कोड लिखा है, दैट लाइन ऑफ कोड इज सफिशिएंट टू रन एनी नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना। कितने भी ट्रायल हो उनके लिए वो किया जाता है, बस आपको डी की टेबल और एसिड टी की टेबल को मॉडिफाई करना है। अभी हमारी 14 वैल्यूज है, मान लो उसमें 1400 वैल्यूज होती, तो हमारा लूप 1400 टाइम्स रन करेगा, हमें कोई लाइंस ऑफ कोड नहीं बढ़ाना है ना। सिमिलर लाइंस ऑफ कोड विल वर्क। तो ये प्रॉब्लम हो गई, ये डाटा टेबल की वैल्यूज हैं, है ना। ओके, सो दिस इज एंडिंग ऑल इन द टुमारोज क्लास। मॉर्निंग 3 to 4 है ना कल क्लास, 3 to 4 में पावर इसको स्टार्ट करेंगे। और स्प्रिंग का आप जो है असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा, डोंट वेट फॉर द लीफ स्प्रिंग, है ना। हेलिकल स्प्रिंग के क्वेश्चंस ही सॉल्व कर दीजिएगा, लीफ स्प्रिंग को अभी फिलहाल लेफ्ट करके बाकी असाइनमेंट अपलोड कर दीजिएगा विद इन टाइम पीरियड। ठीक है, तो उसकी डेट सर। हाँ बोलिए। सर जो फाइल बनानी है उसमें जो हम लोगों ने कोडिंग करी है मैटलैब की, इसी का प्रिंट आउट लगाना है ना। हाँ, इसी का इसका प्रिंट आउट करके स्कैन कर लो, या आप जी सर। डायरेक्ट कंप्यूटर विंडो से भी तो स्कैन कर सकते हो ना। हाँ है? सर, मतलब जब फाइल बनाएंगे जो लिखेंगे उसमें। हाँ देखो, हमारा आप कैसे भी करो, हमें तो क्या चाहिए, आपकी फाइल में सबसे पहले तो इंडेक्स होना चाहिए। जो भी आप मुझे यस पीडीएफ सर। बना के भेजोगे, पीडीएफ में सबसे पहले इंडेक्स होना चाहिए, उसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और डेट ऑफ सबमिशन और रिमार्क, बस 4 कॉलम ले लेना। ठीक है, यस सर। उसका बन जाएगा वो। 8 एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो 8 लाइनों में वो आ जाएंगी डिटेल्स। इसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट 1 स्टार्ट होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम, वो सब आप एक फाइल बना के उसको स्कैन कर लीजिएगा। फाइल एक ही बनेगी कंप्लीट, एक हर एक्सपेरिमेंट की अलग फाइल मत बनाइएगा, सारे एक्सपेरिमेंट की एक ही फाइल बनेगी। ठीक है, जैसे एक यस सर। एक्सपेरिमेंट में मान लो 4 पेज लगते हैं, तो 4 अट्ठे 32 पेज हो जाएंगे, एक इंडेक्स का पेज हो जाएगा। 33 34 35 40 पेज तक जितने भी पेज हैं उनकी एक ही फाइल बनाइए, और पेजेस सीक्वेंस में होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा स्कैन करते वक्त, ऐसा ना हो कि पहले एक्सपेरिमेंट का पहला पेज और फिर दूसरे का चौथा आ गया लाइन में। इन सीक्वेंस होना चाहिए, और स्कैन प्रॉपर करिएगा, कोई आसपास का बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए आपके पेजेस में। ठीक है, और फाइल की शुरुआत में आपका रोल नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर और नाम आना चाहिए, है ना। सेक्शन, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नाम, वो डिटेल आनी चाहिए। नहीं सर, मैं इतना, ये कह रहा हूँ कि जो हाँ सैंपल इंफॉर्मेशन आपने कल भेजी थी ना वेब राइट, फाइल हाँ हाँ में, जो 5th पॉइंट है मैटलैब कोड, तो वो वही है जो कमांड विंडो है, उसी को हम लोगों को स्कैन करना है या नहीं नहीं लिखना नहीं, भी है। कमांड विंडो तो आउटपुट है ना। देखो मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें, जस्ट टाइम शो, मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ, मैं आपको मैटलैब विंडो में बताता हूँ कि कौन सा कोड है और कौन सा आउटपुट है। तो ये आ गया आपका, ठीक। तो देखो अभी हमने ये जो लिखा है ना, क्लियर ऑल वगैरह जो लिखा है, ये हमने एडिटर में लिखा है, एडिटर। तो यस ये तो सर। आपका मैटलैब कोड है, दिस इज द मैटलैब कोड, जो भी है दिस इज द मैटलैब कोड।
तो इस पूरे कोड को आप यस यहाँ से सर। क्या कर सकते हैं, कॉपी करके वर्ड में ले जाइए, वर्ड में एक पेज में सेट करिए, है ना, ज्यादा नहीं भागना चाहिए, एक पेज में सेट कर लीजिए, फॉन्ट साइज वगैरह छोटा कर लीजिए उसका, कोशिश करिए कि पूरा कोड और आउटपुट एक ही पेज में आ जाए। तो हाँ कोशिश सर, वही कह रहा हूँ, मतलब इसको हम लोग वर्ड में ले जा पेस्ट करके। कर ले, हाँ इसको पेस्ट कर हाँ लीजिए बस, और आउटपुट को भी पेस्ट कर लीजिए। ठीक ठीक है, है सर। आउटपुट यस को, सर। और आउटपुट को थोड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे कि जैसे देखो अभी यहाँ पे ना जो काम की बात है वो ये टेबल है ना, यस सर। बाकी सब तो वो है, तो बाकी सब में आप सेमीकोलन लगा देना, तो आपका यस आउटपुट सर। छोटा हो जाएगा, है ना। तो आपने आउटपुट को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके कोशिश करिए कि एक पेज में आ जाए, एक में ना आए तो दो में तो जरूर आ जाए, मतलब ऐसा ना हो कि कोडिंग और आउटपुट का ही 6 पेज लगा हुआ है। हाँ, कोशिश करिए एक पेज में आए, नहीं आ पा रहा है देन ट्राई फॉर 2 पेज के लिए, या कॉलम बना लीजिए उसमें, कॉलम में करके आराम से एक पेज में आ जाएगा। और सीक्वेंस का ध्यान रखिए, कोडिंग आउटपुट, और इसके अलावा कुछ कुछ प्रोग्राम्स में फिगर आउटपुट है, यस सर, फर्स्ट सेकंड में। हाँ तो उनको भी स्कैन कर लीजिए, और सीक्वेंस में उनको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए पोर्टल पर, है ना, वहां पे वो इवेल्युएट हो जाएगा। कोई बट डाउट सर तो नहीं? हाँ बोलिए। कॉपी कॉपी करते हैं ना सर, तो वर्ड में आके जो कोडिंग जो होती है वो सर अलग अलग हो जाती है, तो फिर कोई क्लियर बात नहीं, विजुअल नहीं कोई हो बात नहीं, पाती। कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं अभी वर्ड फाइल खोल लेता हूँ आपके सामने, है ना, मैंने खोल ली वर्ड फाइल, और मैं कोडिंग को यहाँ से कॉपी लेके आता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और देखिए मैं अब आपको वर्ड फाइल को ही शेयर करूंगा, ठीक है। वर्ड फाइल ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मेरे ख्याल से अभी वर्ड खुला नहीं है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यस। तो देखिए ये पूरा का पूरा कोड आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। और अभी ये आप देख रहे हैं आधे पेज में आ गया है ना। आप इसको मान लो और थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, हो सकता है तो कर दीजिए, अदरवाइज ये कोड हो गया। आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए बस आप, ठीक है, यहाँ हेडिंग डालिए मैटलैब कोड, ठीक है। इस वाले पार्ट को थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि आपका हेडिंग पार्ट है, वो थोड़ा सजा दीजिए फाइल को अपने तरीके से, है ना, उसको बोल्ड कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए चाहे तो, ठीक है। उसी के बाद इसको यहाँ पे ले लीजिए नीचे मैटलैब आउटपुट, है ना, या आउटपुट इन कमांड विंडो, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए जो भी लिखना है, मैटलैब आउटपुट यहाँ से कॉपी करिए, और नीचे आप जो है यहाँ पे लिख दीजिए मैटलैब आउटपुट या कमांड विंडो आउटपुट, सिर्फ आउटपुट भी लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस इसके बाद वहां से आउटपुट को कॉपी कर लो, ये देखिए अभी आपके सामने आउटपुट को कॉपी करते हैं, ये आ गया कंट्रोल सी, और आप आ गए सीधे कहाँ पर, रिज्यूम शेयर में आ जाते हैं, शेयर वर्ड फाइल, यहाँ हमने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। अब कॉपी करने में कितने पेज में, 2 पेज में चला गया, कितने पेज में चला गया, 3 पेज बन गए हैं, देखो ये, है ना, 3 पेज बन गए, देखिए ना 3 ऑफ 3 दिख रहा है नीचे। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो ये स्पेस कम कर दो, ये कम कर दो, है ना, काफी चीजें कम कर सकते हो आप, तो आपकी फाइल थोड़ा छोटी हो जाएगी, और इतना करने के बाद फिर उसे स्कैन कर लो, है ना, ऐसे छोटे करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या कर सकते हो, इसको अभी कितना फॉन्ट साइज है, 11 का फॉन्ट साइज है, तो आप थोड़ा 10 का फॉन्ट साइज कर लेना, मान लो बहुत कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। बाकी 11-12 का फॉन्ट साइज रखेंगे तो रीडेबल रहता है ना, बहुत छोटा फॉन्ट साइज करेंगे तो रीडेबल नहीं रहेगा। तो बस इस तरह से इसको छोटा कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हो जाएगा आपका। देखो बहुत सारे गैप हैं इसमें, ये काफी छोटा हो जाएगा, ठीक है। और आप वहां सेमीकोलन लगाओगे तो छोटा हो जाएगा, जैसे ट्रायल 1 ट्रायल 2 ट्रायल 3 ये सब दिखाने की जरूरत ही नहीं है, इन पर सब पे सेमीकोलन लगा दो, और बस लास्ट की लाइन दिखा दो, डिजाइन इज सेफ फॉर वायर डायमीटर दिस मैच। तो जो आउटपुट में केवल काम की बात दिखाइए, बाकी सबको सप्रेस कर दीजिए आउटपुट में, तो आपका जो आउटपुट और कोड एक ही उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो और कोई बताइए, और कोई दिक्कत तो नहीं है, बस आसपास का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, फाइल सीक्वेंस में होनी चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, उसमें यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपका नाम होना चाहिए,
है ना, और 10 में से 8 एक्सपेरिमेंट लिख के भेज दीजिए, बेस्ट से बेस्ट जो भी आपको लगते हैं, कोई भी 8 ले लो आप। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं है थैंक ना? यू सर। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।